ویلکم بیک۔ شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ لیا میں سگے والد نے 14 سال بیٹی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ہے۔ پولیس کے مطابق 14 سالہ مقدس پٹواری شیخ گلریب کے گھر کام کرتی تھی۔ رات گئے جب وہ گھر واپس پہنچی تو والد نے زیادتی کی اطلاع پر ایس ایچ او نے موقع پر پہنچ کر متاثرہ بچی کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ ملزم جو ہے واقعے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ میلسی میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کا افتتاح ڈی ایچ او ڈاکٹر ناصر عثمانی نے کیا ہے۔ نومبر سے دسمبر تک جاری رہنے والی اس انسداد پولیو مہم کے لیے 717 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، جو 31 یونین کونسلز میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے 2,08,455 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی۔ 100% ٹارگٹ کے حصول کے لیے افسران اور ایریا انچارج انسداد پولیو ٹیموں کی نگرانی کریں گے۔ ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر فاطمہ نور نے مختلف جگہوں پر جا کر پولیو ٹیم کو چیک کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عامر نصیر سے۔ صحت کی جانب سے پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ پولیو کا تیسرا دن ہے، جس سے ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر فاطمہ نور سگو نے مختلف ٹیموں کو ٹرانسپورٹ کو چیک کیا۔ تو ہم اس طرح موجودہ ہے ڈپٹی ڈی ایچ او سے جانتے ہیں۔ جی میڈم بتائیے گا، آپ نے مختلف ٹیموں کو چیک کر رہی ہیں، لاری اڈے بھی چیک کر رہی ہیں، بسوں میں بھی چیک رہی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی بالکل، یہاں پر یہ میجر بس سٹینڈ ہے، یہاں پر ہم نے ایک ٹیم کو پابند کیا ہوا ہے جو کہ مارننگ ایوننگ میں یہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ ہر آنے والی بس میں وہ چیک کرتے ہیں کہ بچے موجود ہیں، ان کو قطرے پلاتے ہیں۔ کافی محنت سے ہماری ٹیمز کام کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ جی بالکل، میڈم کا بھی یہی کہنا تھا کہ پولیو قطرے پلا رہے کامیابی ہوگی۔ تو میں اسٹاف موجودہ یو سی ایم او ان سے جانتا ہے۔ جی بھائی بتائیے گا، آپ ٹرانسپورٹ پہ قطرے پلاتے ہیں، آپ کو کون سی چیزوں کا دشواری کا سامنا ہوتا ہے؟ آپ اکیلے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہاں پہ ہمیں کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو بسیں جو ہے وہ بہت جلدی سے لوگ ہوتے ہیں، وہ اتنے زیادہ دیر سٹاپ نہیں کرتی۔ دوسرے نمبر پہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ اکثر انکاری ہوتے ہیں، تو انکاری جب ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں پولیس کی سپورٹ لینی پڑتی ہے۔ پولیس کی یہاں پہ ڈیوٹی ہونے کے باوجود یہاں پہ لوگ حاضر نہیں ہوتے، وہ ڈیوٹی نہیں کرتے پولیس والے، تو اس وجہ سے ہمیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی۔ اگر ان کی ریگولر یہاں پہ ڈیوٹی ہو تو انشاءاللہ یہ پرابلم بھی نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری ٹیمیں بہت محنت کر رہی ہیں اور انشاءاللہ ایمانداری سے کام کر رہی ہیں۔ باقی کوئی ایشو نہیں ہے، صرف مین یہ ایشو ہے کہ کم از کم یہ جو ہماری یہ ٹرانزٹ ٹیمیں ہیں نا، یہاں پہ پولیس کی ڈیوٹی جو ہے وہ ریگولر طریقے سے ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میری ایک ریکویسٹ ہے جی ڈی سی او صاحب سے، ڈی پی او صاحب سے، کہ جس بندے کی بھی ڈیوٹی لگائی جائے وہ یہاں پہ ریگولر طریقے سے ہمارے ساتھ وہ ڈیوٹی کریں۔ جی بالکل، یو سی ایم او کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمیں دشواری پیدا ہوتی ہے، گاڑیاں رکتی نہیں ہیں، بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائے جاتے، پولیس والا ہمارے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کی اگر ڈیوٹی لگائی جائے، ان کے ڈر کی وجہ سے بچوں کے جو ہے وہ پولیو کے قطرے پلائے جا سکتے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ میں ڈپٹی کمشنر خانیوال اور ڈی پی او خانیوال سے مطالبہ کرتا ہوں ان کو پولیس والا دیا جائے، تاکہ ہر بچے کو پولیو کے قطرے پلا سکے اور بچوں کو معذوری سے بچایا جا سکے۔ جی شاہ عبداللطیف یونیورسٹی میں ڈاکٹر تنویر عباسی یادگار مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ صدارت یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر خلیل احمد ابو پوٹو نے کی اور اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ ڈاکٹر تنویر عباسی عظیم شاعر اور عظیم دانشور تھے۔ مرحوم ڈاکٹر تنویر عباسی سچل سرمس یادگار کمیٹی کے سیکرٹری رہے۔ انہوں نے شاہ لطیف یونیورسٹی کے سچل چیئرمین میں بیٹھ کر بڑا تاریخی اور تحقیقی کام کیا اور ڈاکٹر مہر خادم، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ، ڈاکٹر اول سومرو، ڈاکٹر مشتاق پھل کوثر اپڑو اور امر اقبال، ڈاکٹر ابراہیم کھرل اور حسن شیخ، محمود سومرو، ستار سروہی اور دیگر نے تقریر کی۔ کہروڑ پکا میں سردیوں کا آغاز ہوتے ہی سرسوں کی فصل تیار ہو کر پیلے رنگ کے پھولوں کی چادر اوڑھ لیتی ہے۔ ہر طرف کھلے پیلے رنگ کے پھول سردیوں کی سوغات ساگ کی آمد کا پتہ بتاتے ہیں۔ سرسوں کا ساگ کھانے میں تو لذیذ ہوتا ہی ہے، لیکن اس کی تیاری کیسے ہوتی ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے حسنین خان رند کی اس رپورٹ میں۔ سرسوں کا ساگ ہو اور ساتھ ہو مکھن کا پیڑا،
तो खाने का मजा ही दुबाला हो जाता है। इसकी तैयारी कैसे होती है, मुलाहिजा फरमाएं। सर्दियों का आगाज होते ही सरसों की फसल तैयार होकर पीले फूलों की चादर ओढ़ लेती है। हर तरफ खिले पीले फूल सर्दियों की सौगात साग की आमद का पता देते हैं। ये जरा साग है, ये सारे देहातां दी सौगात है, ये बड़ा वीआईपी होंदा है। ये सारे रिश्तेदार अजीज़ोकार शहरें च रहने वो भी बड़ा पसंद करें। ये मौसम दा मेवा है, जिसले इन्हीं मौसम आंदी है और साकू फरमाइश करें भाई सारे देर भेजो या देसी घ्यो या इन्हें मक्खन मिलाया वजे, बड़ा वीआईपी होंदा है। आप ही खाने हैं, रिश्तेदारों को भेजे ने। हाथी सौगात है, ये साढ़े अजीज जेरे शहरें च रहने वो फरमाइश करें भाई ये साग सारे वास्ते घेना हो। एक बार दाल जी गंदला खोनी है, ये साग जरा ये बार मंधड़ा मरेनी है ते ये उनको पूछे ने। सबसे पहले खेतों से साग की नरम गंदलें तोड़कर काटने के बाद आग की हल्की हल्की आंच पर रिवायती तरीकों से 3 से 4 घंटे तक पकाई जाती हैं। जब साग पककर तैयार हो जाता है तो साग को मजीद लजीज और ज़ायकेदार बनाने के लिए पालक, सब्ज मेथी, बाथू, धनिया, लहसुन समेत मुतअद्दिद मसाला जात डालकर लगाया जाता है देसी घी का तड़का। साग, खालिस मक्खन और मकई के आटे से बनी रोटी छोटे बड़ों की पसंदीदा डिश और सर्दियों की खसूसी सौगात भी समझी जाती है। साग को सब्जियों का सरदार और पंजाब की पहचान भी माना जाता है। सरसों का साग खाने में इतना लजीज और जायकेदार होता है कि खाने वाला ही उंगलियां चाटता रह जाता है। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन फरिंद, मेट्रो वन न्यूज, कैरोल पका। कबीरवाला में कदीम तरीन तरीके से आज भी काश्तकार गुड़ बना रहे हैं। गुड़ केमिकल से पाक होता है। शहरी गुड़ को बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं। गुड़ की तैयारी में गन्ने के रस को बहुत से मराहल से गुजारा जाता है। अमीर हमजा की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह कबीरवाला में भी गुड़ बनाने के लिए कदीम तरीन तरीका इस्तेमाल किया जाता है। गुड़ बनाने के लिए बेलना जिसमें गन्ने का रस निकलता है, इसके बाद आग जलाकर बड़े कड़ा में गुड़ को गर्म किया जाता है। इसके बाद इसको ठंडा करके इसके पीस बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। शहरी मीठे के लिए गुड़ बड़े शौक से खरीद रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गुड़ इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। शुगर के मरीज जहां चीनी इस्तेमाल नहीं कर सकते वो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमाद दे गन्ने वड्ड के इत्थे वेलने अगे रखी दे, वेलने च लाउने, उस दा रस निकलदा, रस ड्रम दे विच आउंदा, ड्रम दे विच असीं कड़ाहे दे विच पाउने आ। 2 कड़ाहे ने, पिछले कड़ाहे अगले कड़ाहे दा पकदा, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੈਸੀਆਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਗੁੜ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਡੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਗੁੜ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ इस इलाके का। तो ये गुड़ तैयार हो रहा है, इसमें अपने सफाई की है, ये तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे। ये फिर कड़ा तैयार हो जाएगा, इस गढ़ में डालेंगे। अब ये इसको हिलाना है तो फिर गुड़ जम जाएगा, इसकी फिर पेड़ियाँ बनाएंगे। उसके बाद जो है फिर इसी तरह पीछे से सिलसिला चलता है तो फिर आगे जाके गुड़ बन जाता है। कबीरवाला के शहरी चीनी के मुकाबले में गुड़, शक्कर वगैरह इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं। केमिकल से पाक गुड़ में मेवा जात डालकर शहरी इसे शौक से इस्तेमाल करते हैं। कैमरा टीम के हमरा चौधरी मोहम्मद अमीर हमजा सऊ, मेट्रो वन न्यूज, कबीरवाला। जामशोरो पुलिस ने 2 मुलजिमान असलहा और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिए हैं और दूसरी कार्रवाई में एक मंशियात फरोश को भी गिरफ्तार कर लिया है। SHO जामशोरो नियाज हुसैन पनवर की सरबराही में जामशोरो पुलिस ने जराइम पेशा मुलजिमान राफे कुरैशी और अजहर चांडियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा, पिस्टल और 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। मजीद एक और कार्रवाई में पुलिस ने एक कार पर छापा मारकर मुलजिम संजाद मीरानी को गिरफ्तार कर लिया, जिसका ताल्लुक कराची से है। टंडो मोहम्मद खान में सरकारी ज़मीनों और सरकारी महकमों की बिल्डिंग्स पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि टंडो मोहम्मद खान में अगर कहीं भी सरकारी ज़मीन या सरकारी दफातर के बिल्डिंग्स पर कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ है तो 3 दिन में दरख्वास्त दी जाए।
ڈپٹی کمشنر لودھرا عبدالرؤف مہر کی موبائل پولیو ٹیمز کی سرپرائز مانیٹرنگ کی۔ ڈپٹی کمشنر عبدالرؤف مہر نے سپر چوک بی کالونی، میلاد چوک کے نواحی علاقوں میں موبائل پولیو ٹیمز کا اچانک معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر عبدالرؤف مہر نے خود بھی بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی ویکسین کے قطرے پلائے۔ ڈپٹی کمشنر نے پولیو سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین، پینے والے بچوں کی فنگر مارکنگ اور ڈور مارکنگ بھی چیک کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع انتظامیہ لودھرا پولیو کے خاتمے کے لیے مکمل طور پر متحرک ہے۔ احمد آباد کا نواحی گاؤں ڈھلا والی میں بھی فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ مزید ڈاکٹر مسعود بٹ کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا، آپ کو سناتے ہیں۔ حاضر ہوئے ہیں کیمپ کے سلسلے میں۔ کیمپ جو ہے وہ گجر صاحب نے آرگنائز کیا اور ہم ان کے شکر گزار ہیں بہت زیادہ۔ کیمپ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ جن افراد کو، خواتین حضرات کو جو یا بچوں کو کھانسی ہے 2 ہفتے سے یا 2 ہفتے سے زیادہ، تو یا بخار ہے، تو اگر بھوک نہیں لگتی یا وزن میں کمی ہوئی ہے تو وہ آ کے فوراً جو ہے نا ایکسرا کروائیں۔ ایکسرے کے کوئی چارجز نہیں ہیں، بالکل فری ہے۔ بلغم کا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی فری ہے اور ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی فری چیک اپ کریں گے۔ تو ہم سب کے لیے صحت کے لیے جو ہے نا دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا اس ٹی بی کے موذی مرض سے جو ہے نا محفوظ رکھے، آمین۔ بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ صفدر آباد میں روڈ بلاک کر کے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے، جبکہ تاجروں کا موقف ہے کہ دیہی علاقوں میں بجلی چوری کروائی جا رہی ہے اور لائن لاسز پورا کرنے کے لیے شہر کی بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ واپڈا کے چند کرپٹ اہلکار منتھلی لے کر دیہاتوں میں بجلی چوری کرواتے ہیں اور لائن لاسز کو پورا کرنے کے لیے صفدر آباد شہر کی بجلی بند کی جاتی ہے۔ تاجروں نے مطالبہ کیا کہ صفدر آباد سے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو فی الفور ختم کیا جائے۔ بھوانہ میں ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ چوری کی واردات میں ملوث ملزم گرفتار کر کے 8 لاکھ سے زائد مالیت کا مال، مسروقہ سامان برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے گھر سے طلائی زیورات سمیت قیمتی سامان چوری کیا۔ ملزم کے خلاف تھانہ لنگرانہ میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ پولیس آرگنائز کرائم یونٹ کے اے ایس آئی نصر اللہ خان نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی۔ فلاحی تنظیم کے چیئرمین حاجی خالد محمود کا احسن اقدام، بزرگ افراد صرف 1 لاکھ روپے میں عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں پتوکی سے عامر علی ملک کی اس رپورٹ میں۔ فلاحی تنظیم فیضان طیبہ فاؤنڈیشن کی جانب سے غریب بزرگ افراد کے لیے 1 لاکھ روپے میں عمرہ کروانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ پہلے گروپ میں اس پیکج سے 17 افراد مستفید ہوئے، جن کے لیے شادمان کالونی پتوکی میں الوداعی تقریب سجائی گئی۔ کوئی فراڈ نہیں، کوئی ویش گل بات کا دھوکھا نہیں۔ لاکھ روپئے غریباں نوں بھیجدا پیا، بہتے پیسے بانتے کو نہیں غریباں کولوں۔ مہربانی انہاں دی بہت بہت ہے۔ سانوں آپ عمرہ کرا رہے ہیں، اسی جا رہے ہیں چھتی انہوں غریب بندے ساری امداد کی ہے جو آپ نے، بہت بہت شکریہ۔ تو یہ بہت ماشاءاللہ بہت اچھا پیکج ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور خیر جزا دے۔ تقریب میں آنے والے شرکا میں بھی 3 عمرے کی ٹکٹ، موٹر سائیکل، سائیکل اور نقدی انعامات تقسیم کیے گئے۔ یہ فیضان طیبہ ویلفیئر فاؤنڈیشن میں الحمدللہ آج عمرہ زائرین کی الوداعی تقریب کا اجتماع ہوا ہے، جس میں الحمدللہ جو چودھری خالد محمود صاحب نے 1 لاکھ کا پیکج غریبوں کو دیا تھا، 55 سال کی عمر کے لوگوں کو الحمدللہ، جس میں سے 17 لوگ ہیں وہ الحمدللہ آج ان کو الوداعی تقریب دی گئی ہے۔ لوگوں نے حاجی خالد محمود چودھری اور ان کی مسز کی جانب سے غریب افراد کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو خوب سراہا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک محمد عامر، میٹرو 1 نیوز پتوکی۔ تونسا شہر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں، گلی گلی میں سیوریج کا گندا پانی جمع ہو گیا، گٹر ابلنے لگے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں تونسا شریف سے محمد یوسف چانڈیا کی اس رپورٹ میں۔
तौसा शरीफ चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली। तौसा शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर, गली गली सीवरेज का गंदा पानी, गटर उबलने लगे, पैदल चलने वालों को मुश्किलात, शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मैडम की कारकर्दगी सिर्फ व्हाट्सएप तक महदूद है। शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब से मैडम साहिबा तौसा तैनात हुई हैं, शहर के मसाइल में मजीद इजाफा हुआ है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, गलियों में गंदा पानी जमा होकर लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। शहरी मच्छरों की वजह से मलेरिया में मुब्तला होने लगे हैं। दूसरी तरफ कई महलों के बोर कई दिन खराब रहते हैं, जिसकी वजह से लोग कई रोज पानी पीने के लिए पानी की बूंद बूंद को तरसते रहते हैं। शहरियों का कहना था कि मैडम चीफ ऑफिसर हफ्ता में एक बार दफ्तर आती हैं और साइलिन से मिलना भी गवारा नहीं करती। हम अपनी शिकायत लेकर कहां जाएं? शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर मैडम चीफ ऑफिसर तौसा के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके मसाइल भी हल किए जाएं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यूसुफ चांडिया, मेट्रो वन न्यूज़, तौसा शरीफ। तलंबा में भी 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं राना आज़म खान से। हाँ जी बिल्कुल, पोलियो के 2 कतरे पिलाएं, अपने बच्चों को हमेशा के लिए माजूरी से बचाएं। डिप्टी कमिश्नर हामिद सिंधु की हिदायत पर पंजाब के दूसरे शहरों की तरह तलंबा में भी 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अहमद नवाज़। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि पोलियो के हवाले से क्या डॉक्टर साहब जो तलंबा में पोलियो की टीमें कतरे पिला रहे हैं बच्चों को, इसके हवाले से आप क्या वालिदैन को मैसेज देना चाहते हैं? जी, आज पोलियो मुहिम का 3रा रोज़ जारी है। हमारी वालिदैन से गुजारिश है कि हमारी टीमें घर घर जा रही हैं, तो आप काइंडली अपने बच्चों को पोलियो कतरे लाजमी पिलवाएं ताकि हम इस मोदी बीमारी से जान छुड़वा सकें। डॉक्टर साहब जो तलंबा में कितने बच्चों को कवर कर चुकी हैं आपकी टीमें? जी, हमारा जो टारगेट है ना 5 दिनों का, वो है 5500 बच्चे। तो हमने ये 5500 बच्चे कवर करने, इसमें हमारी 20 टीमें जो मोबाइल टीमें घर घर जाके कतरे पिलाएंगी और एक ट्रांजिट टीम है जो कि बसों वगैरह में जो बच्चे आते हैं उनको कवर करेगी, और एक फ़िक्स टीम है, मतलब जो बच्चा कोई रह जाता है तो हमारे सेंटर में RSC तलंबा से आके वो फ़िक्स टीम से अपने बच्चों को कतरे लाजमी पिलवाएँ। और हमारी फिर भी वालिदैन से दोबारा गुजारिश है कि हमारी टीमों का साथ दें और हमें इस मोदी बीमारी से जान छुड़ाने का मौका दें। जी बिल्कुल, जो हमारी डॉक्टर अहमद नवाज़ साहब से बात है, उनका भी ये कहना है कि हमारी वालिदैन से गुजारिश है कि जो हमारी पोलियो टीमें हैं इनसे तावन करें ताकि कोई बच्चा तलंबा में। असिस्टेंट कमिश्नर आयुषा जफर ने खाद के गोदामों पर छापा मारकर 150 से ज़ायद खाद की बोरियां बरामद कर ली हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद आयुषा जफर का खाद ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ एक्शन, गोदामों पर छापा, सैकड़ों की तादाद में खाद की ज़ख़ीरा की गई बोरियां बरामद की गईं। बरामद खाद म्यूनसिपल कमेटी खानका डोगरा में अपनी निगरानी में किसानों की फ़िर्द मलकियत एक गवर्नमेंट रेट के मुताबिक दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि किसी भी खाद डीलर को गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा नरखों से ज़ायद खाद फ़रोख्त करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ते और अब आपको बताते हैं कि दारुल उलूम तालीमुल कुरान की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बाबरकत और रूहानी महफिल में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सीरत नबी कॉन्फ्रेंस की सदारत मौज़े फालू के चीमा के मारूफ फलाही समाजी और सियासी शख्सियत चौधरी हाजी मोहम्मद अख्तर चीमा ने की। मदरसे के मोहतमिम हाफिज़ मोहम्मद अकबर ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कारी हमाद अनवर नफीसी ने तिलावत कुरान पाक से लोगों के दिलों को मुनव्वर किया, जबकि सना ख्वान रसूल मोहम्मद इस्माइल तनौली ने बारगाह रिसालत में हदिया अकीदत पेश करके महफिल को रूहानी और वजदानी बना दिया। मौलाना अताउल्लाह हुज़ैफ़ी ने खिताब करते हुए कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक मुकम्मल और कामिल नमूना है जिस पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि मवेशी मंडी लुडन में ठेकेदारों की व्यापारी से लूटमार और चार जंग का सिलसिला जारी है। व्यापारियों ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ठेकेदार बड़े जानवर के 800 रुपये और तोड़ी पराली के नाम पर ज़बरदस्ती 5000 से 10,000 रुपये धड़ल्ले से वसूल कर रहे हैं।
ठेका शेड्यूल में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि किसी को भी ज़बरदस्ती पराली न डाली जाए, लेकिन इसके बावजूद भी ज़बरदस्ती पराली के नाम पर पैसे वसूल किए जा रहे हैं। हारूनाबाद में काजीवाला रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर से मां जाँ बहाक हो गई है। बेटी और बाप शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 का कहना है कि जख्मियों को इब्तिदाई तिबी इमदाद देने के बाद TSU अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया था। बैरून मुल्क से आए सिख यात्रियों की गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर नारोवाल आमद के मौके पर DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने उनका इस्तकबाल किया। SP इन्वेस्टिगेशन नारोवाल, DSP सदर नारोवाल और DP हेडक्वार्टर नारोवाल भी और DPO नारोवाल के हमरा मौजूद थे। बैरून मुल्क से आने वाले सिख यात्रियों के लिए नारोवाल पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। सिख यात्रियों ने नारोवाल पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम पर DPO नारोवाल का शुक्रिया अदा किया। पसरूर में बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स हादसात का सबब बनने लगे। ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटी हुकूमती अहकामात को मुसलसल नज़रअंदाज करने की पॉलिसी पर गामजन है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद न होने पर रोड हादसात की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया। मज़ीद इस बारे में जानते हैं एजाज अहमद खोकर से। जी बिल्कुल, कसूर कम उम्र ड्राइवर की वजह से हादसा होना मामूल बन चुका है, जिसमें कई कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं। तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उससे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ये जो वालदैन अपने कम उम्र बच्चों को, तकरीबन उम्रें भी इनकी 10-10, 12-12 साल होती है, इनको गाड़ियां चलाने के लिए दे देते हैं। खुद तो वो मरते ही मरते हैं, साथ दूसरों को भी लेके मरते हैं। लिहाजा वालदेन को चाहिए कि अपने छोटे कम उम्र बच्चों को गाड़ियां चलाने के लिए ना दे। और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का भी एक रोल बनता है कि कम से कम जो कम उम्र बच्चे ड्राइविंग करते हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये भी बच सके और इनसे दूसरे भी बच सकें। जैसा कि आपने सुना कि शहरी ने कहा है कि ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे तैनात होने चाहिए और वालदैन को भी चाहिए कि अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ियाँ चलाने के लिए ना दे, और ट्रैफिक पुलिस को भी चाहिए कि कम उम्र ड्राइविंग करने वाले बच्चों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जी खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे कि हैदराबाद में डेंगू के केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, मगर बल्दियाती नुमाइंदगान के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इलाकों में सफाई का बुरा हाल है और मच्छर मार स्प्रे भी अब तक किसी इलाके में नहीं करवाया गया। इस हवाले से बल्दियाती नुमाइंदगान को क्या कहना है, बता रहे हैं शाजिब शेख अपनी इस रिपोर्ट में। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद इन दिनों डेंगू का शिकार है। डेंगू वायरस हैदराबाद में तेजी से फैलता जा रहा है। सिर्फ नवंबर में ही 58 केसेस सिविल अस्पताल में रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 90% केसेस का ताल्लुक हैदराबाद से है। तकरीबन 90% पेशेंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो हैदराबाद से ही आ रहे हैं। बाकी दूसरे जिलों से आए वो बहुत कम हैं, इतने नहीं है, ज़्यादातर हैदराबाद है। हैदराबाद के जितने मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, आप लतीफ़ाबाद देख लें, हाला नाका वाली साइड देख लें, मुज़ाफ़ाती इलाकों से जितना भी हमने नोट किया स्टेटिक्स में, वहाँ से लोग ज़्यादा हैं हमारे पास। शहर में डेंगू के केसेस की शरह इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मगर बल्दियाती नुमाइंदगान कुछ काम करवाने के बजाय सब अच्छा है का राग अलाप रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई का बुरा हाल है और मच्छर मार स्प्रे का भी कुछ पता नहीं। तमाम जितने भी टाउन हैं उससे बहुत बेहतर हालात हैं। मैंने तमाम तर हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल भी विजिट करे हैं। हमने जो मरीज देखे हैं, इक्का दुक्का हमें टाउन के मिले, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब सेफ साइड है। यहाँ पर ये जो सफाई के मामले से बहुत अरसे से जो है ना मामला ख़राब था, जिस पे हमने फुल फोकस किया हुआ है। तो तकरीबन मामला हल हो चुका है। 75%, 25 और रह गया, उस पर भी हम लगे पड़े हैं। हैदराबाद के अंदर ही एक ये वबा फैली हुई है जो कि हर साल फैलती हुई है, और सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है हमारा शाह लतीफ़ाबाद टाउन। ये तो काफ़ी हद तक
डेंगू को कंट्रोल किया गया, लेकिन उसके बाद भी सबसे ज़्यादा मुतासर हमारा ही टाउन हुआ है, शाह लतीफ़ाबाद। शहरियों का कहना है कि बरसात के बाद गंदगी के बायस मच्छरों की अफजाइश बढ़ गई है, मगर बल्दियाती नुमाइंदगान इस हवाले से कोई अमल दरामद नहीं कर रहे। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। वजीराबाद के इलाके कोट इनायत खान से लापता नौजवान का सुराग न मिल सका। छठी जमात का तालिब इल्म 14 रोज़ से लापता है। वालिदैन और रिश्तेदार गम से निडाल हैं। कहते हैं कि मकामी बासर चौधरी ने हमारे बेटे को अगवा कर लिया है। पुलिस ने लापता होने का मुकदमा तो दर्ज कर दिया, मगर मुलजिमान को नामजद ना किया। IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब हमारी मदद करें। घग्गर पुलिस का रवैया नामुनासिब है, इंसाफ के लिए कहाँ जाएं। वालिदैन पुलिस का कहना है कि कोशिश कर रहे हैं कि जल्द बच्चा ढूंढ निकालेंगे। और अब आपको बताते हैं कि समंदरी में असिस्टेंट कमिश्नर सलेमान मंशा की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ है। इस पर मज़ीद बात करते हैं ताहिर चौराही से। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे ही है कि हुकूमत पंजाब के विजन अब गांव चमकेंगे के हवाला से जो है वो इंतज़ामिया जो है वो तमाम चक्कू को खूबसूरत और कुशादा बनाने के लिए मुतहरक है। और इसी हवाला से जो है वो आज म्यूनसिपल हॉल में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम चक्कू के नंबरदारान ने भी जो है वो शिरकत की है। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी सुलेमान मंशा साहब, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा इस हवाला से कैसे मुहिम को आप लेकर जी, ये बिल्कुल बल्दिया के पैटर्न के ऊपर, जिस तरह बल्दिया शहरों के अंदर सफाई करती है, उसी तरह अब ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फैसला किया है कि ऐसी ही सहूलियात अब हम पंजाब के सारे देहातों में देंगे। तो डेली हमारा नुमाइंदा जो है स्वीपर और उसके साथ जितना भी सफाई का अमला है वो वहाँ पे जाते हैं और जाके गाँव की गलियों नालियों की सफाई करते हैं। और उसके चार्जेस बड़े नॉमिनल हैं, वो सिर्फ 100 रुपये या 50 रुपये चार्ज करते हैं, जो कि सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के अकाउंट में जमा हो जाता है और फिर उसको हस्बे ज़रूरत जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाह वगैरह देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि फैसलाबाद पूरे पंजाब में रिकवरी के हवाले से पहले नंबर पे है और समुंदरी फैसलाबाद में दूसरा नंबर पे है। तो आज हमारी इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। तो जितना भी हमारा स्टाफ है सबको अपना काम इस हवाले से तेज़ करने की हदायत दी गई हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी सहूलियात बल्दिया के लेवल पे मिल रही हैं ये सारी सहूलियात अब गाँव के लोगों को मुयसर हों। जी बिल्कुल, आपने असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी सुलेमान मंशा की बात सुनी। उनका कहना है कि तमाम वर्कर्स को ये हदायत जारी की गई हैं कि ये इस मुहिम को जो है वो तेज़ी से जारी रखा जाए ताकि आवाम को जो है वो साफ़ सुथरा माहौल मुहैया किया जा सके। मंडी बहाउद्दीन नवाही गांव खटियाला शेखा में मोटरसाइकिल मुसल्लह अफराद ने रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग करके प्राइवेट स्कूल टीचर्स को कत्ल कर दिया है। मंडी बहाउद्दीन पुलिस के मुताबिक थाना खटियाला शेखा के इलाके में 26 साल प्राइवेट स्कूल टीचर इरम शहजादी को घर से स्कूल जाते हुए रास्ते में 2 मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी कर दिया, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो दौरान इलाज दम तोड़ गई। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्द और DPO रजा सफदर कासमी मकतूला के घर पहुंच गए और वालिदैन से इज़हार ताज़ियत किया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के ज़ेर एहतमाम फोरेंसिक साइंस की अहमियत और क्राइम सीन प्रोसेसिंग को दरियाफ्त करने के हवाले से फोरेंसिक साइंस प्रोसेसिंग ऑफ क्राइम सीन के मौजू पर एक रोज़ा सेमिनार और वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में आगाही दी गई कि क्राइम सीन और फोरेंसिक साइंसेज से जुड़े महक़क़ीन किन किन मराहिल से गुजरते हैं। क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे करना हो या लेबॉर्ट्री में नमूनों की जांच पड़ताल। इस्लामिया यूनिवर्सिटी शोबा फोरेंसिक साइंसेज के तलबा ने सैकड़ों जिंदगियां निकलने वाले ऑयल टैंकर हादसा हो या सियालकोट मोटरवे वाक़या, तलबा ने मॉडल्स की सूरत में तहकीक की हर पहलू से अक्कासी की। बुनियादी तौर पर सेमिनार में अगराज़ व मकासद माशरे में फोरेंसिक साइंस की अहमियत को उजागर करना था। शहरनामे से फ़िलहाल इतना ही।